Assalamu alaikum, dear students. We have discussed about position, distance, and displacement. Today we are going to study speed and velocity. Both speed as well as velocity tells us how fast an object moves. How fast an object moves. That is given by speed as well as velocity. We will discuss them one by one. First, speed. Then we will combine them. What is speed? Speed can be defined as the ratio of path length to that of time taken. What is speed? Speed is defined as ratio of path length, to the time taken. Path length means distance. We have already discussed that. Distance is the path length. Total actual path traveled by an object, that is path length. Ratio of, we can also define it as the ratio of distance traveled to the time taken. Let me write it like this: distance divided by time taken. Total distance divided by total time taken, that is speed. Its SI unit is distance is meter, time taken is second, meter per second is its SI unit, and its dimensions of speed, that is m1 r raised to the power r raised to the power 0 t raised to the power, it's m naught, because m stands for meter here, it's meter per second, L1 t raised to the power -1. It becomes its dimensional formula. And speed is represented by small v. We represent speed by v. Symbol V stands for speed. What is speed? It is the ratio of path length, means you can also call it as ratio of distance to the time taken, or simply speed is distance traveled to the rate of time taken. Its SI unit is meter per second. Its dimensional formula is m naught L1 t raised to the power -1. Because distance is meter, we can get the dimension from its SI unit. M meter means L1, time second raised to the power -1. Second is the SI unit of time, t raised to the power -1. And there is no mass in the definition of speed, therefore m naught. So dimensional formula of speed, that is m naught L1 t raised to the power -1. These things are the basic to the speed. Now, what is velocity? First was speed, then we have velocity. Velocity is defined as the ratio of displacement to the time taken. A ratio of displacement to the time taken. A ratio of displacement to the time taken. Velocity is represented by v with an arrow, because velocity, it's a vector quantity. It's the ratio of displacement is a vector quantity. We have displacement to the rate of time taken, and here we have distance to the rate of time taken. Speed is a scalar quantity. Scalar quantity means it possesses scalar quantity. It is a scalar quantity.
it possesses only magnitude, no direction, no sense of direction. But velocity, it is defined as displacement to the rate of time taken. It is a vector quantity. Vector quantity. Vector quantity means it possesses both magnitude as well as direction. Its SI unit same as that of speed. SI unit of velocity, that is meter per second, and its dimensional formula dimensional formula of velocity, that is same as that of speed, m naught L1 t raised to the power minus 1. SI unit and dimensional formula for both velocity as well as speed, that is common. But speed is a scalar quantity, means it possesses only magnitude, no direction. Speed is without any sense of direction, but velocity is with the sense of direction. Therefore, speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity. These are very basic things about speed and velocity. और आपने ये सभी जो है चीज़ें 9th में भी पढ़ी होंगी और ऐसे ही कुछ पढ़ी होंगी. और हमने एक फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा, जैसे हमने स्पीड वेलोसिटी का लिख दिया. ये मैथमेटिकल फॉर्मूला मैं आपको लिखा दूंगा. हमने अभी कुछ टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी भी पढ़नी है. तो ये चीज़ें, एटलीस्ट ये चीज़ें, ये तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमने रिकॉल किया है जो भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है. तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. अब थोड़ा और इनको आगे डिस्कस करते हैं. हमने कुछ बेसिक चीज़ें जो है स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ ली, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए. और हमने देखा कि स्पीड जो है, इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और जो वेलोसिटी है उसको हमने कहा कि इट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. बस फर्क डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का है, पर यूनिट टाइम. मैथमेटिकली जो कॉमनली जो आपने 9th में पढ़ा होगा, यहाँ पे डिफरेंट जो है फॉर्मूले आएंगे, लेकिन जो आपने 9th में पढ़ा होगा, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस s डिवाइडेड बाई t एंड वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज velocity is a vector, so we represent it with v with an arrow at the top. This arrow stands for vector. This is velocity. Velocity is equal to displacement per unit time. Here s stands for distance and s with an arrow, that is displacement. We have already discussed that. This is speed and this is velocity. Now speed, we have read that it's a scalar quantity and velocity is a vector quantity. Thus, for speed, as it is a scalar quantity, it is always positive. Positive means only in one direction. One direction means no sense of direction, or we can say speed is never negative. Zero speed means object is at rest. But velocity, for velocity, because it possesses a sense of direction, it can be positive, negative, or zero. We will discuss these things in types of speed and velocity. Keep these things in mind. Speed is the distance per unit time. Velocity is displacement per unit time. Mathematically, speed is equal to distance divided by time, and velocity is equal to displacement per unit time. Speed is never negative. Negative and positive only signifies direction. As speed has no direction, therefore it can never be negative. If speed is zero, that means object is at rest. Velocity can be positive, negative, or zero. Positive means in one direction. Negative means
in another direction. For example, object is moving forward in this direction. We will say velocity is positive. If the same object is moving in the opposite direction, then we call its velocity is negative. Keep it in mind, negative and positive signifies direction. इसका ये मतलब नहीं होता है कि पॉजिटिव मीन्स ज्यादा एंड नेगेटिव मीन्स कम. नहीं, ये बच्चों को दिमाग में गलत फहमी होती है कि पॉजिटिव ज्यादा और नेगेटिव जो है कम है. फिजिक्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है वो यहाँ पे मोशन के केस में हम डायरेक्शन के बारे में बताते हैं. तो ध्यान देना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज फॉर डायरेक्शन, नॉट फॉर इंक्रीज और डिक्रीज. कीप इट इन माइंड. Now we will discuss first types of speed and then types of velocities. Speed can be divided into 4 types. 2 categories we can call it. First, let me divide it like this. Uniform speed and next is non-uniform speed. First category, we will divide speed in 2 types, uniform speed and non-uniform speed. Second category, we will divide speed as instantaneous speed and average speed. स्पीड को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया है. एक में जो है हमारे पास 2 टाइप्स आ रही है, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. और सेकंड कैटेगरी में जो है हमारे पास आ रही है इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड दिस एवीजी, दैट मींस एवरेज स्पीड. ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है. तो पहले बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की. यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? जब ऑब्जेक्ट जो है एंटायर मोशन में एक ही स्पीड के साथ घूमेगा, then the object is said to be moving with uniform speed. हम क्या लिख सकते हैं? If for entire motion speed remains constant, then the object is said to be moving with uniform speed. लेकिन जब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा? मोशन के दौरान जो है वो स्पीड बदलती जाएगी. हम लिखेंगे इफ स्पीड changes with time. If speed changes, then the object is said to be moving with non-uniform speed. इसका क्या मतलब है? ध्यान से देखना. ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है, ये हमारे पास फाइनल पोजीशन है, ऐसा समझ लो. और ऑब्जेक्ट जो है वो ये पाथ लेके यहां आ गया है ऐसे. और एंटायर मोशन में अगर आप कहीं पे भी चेक करोगे ड्यूरिंग द होल मोशन, अगर स्पीड सेम रही, लेट इट बी यहां पे स्टार्ट कर गया 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी 5 मीटर, यहां पे भी, यहां पे कहीं पे भी चेक करोगे तो स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड ही रही, चेंज नहीं हुई, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. लेकिन अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड बदल रही है स्पीड, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में था. अब हमारे पास जो है दैट इज इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड. तो पहले एवरेज स्पीड की बात करेंगे और वहां से फिर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे. व्हाट इज दिस एवरेज स्पीड? ठीक है,
एवरेज स्पीड जो है हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है जो हम कॉमनली बताते हैं, इट इज द टोटल डिस्टेंस, स्पीड है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, दिस इज द एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस लो और कितना टाइम लिया, दैट इज एवरेज स्पीड। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एवरेज स्पीड लेट इट बी डेल्टा एस से रिप्रेजेंट, डेल्टा वी, बिकॉज वी हमने यूज किया है, डेल्टा वी एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो डेल्टा वी जो है उसको हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, दैट इज एस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम हमारे पास क्या है, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस डेल्टा एस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम जो है दैट इज डेल्टा टी। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड कहलाएगा। जैसे सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, ये समझ लो ये किश्तवाड़ से आपने ट्रेवल स्टार्ट किया और आप जम्मू पहुंचे, जम्मू जाना है आपने, अप्रोक्सीमेटली 240 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है किश्तवाड़ टू जम्मू, और आपको 6 आवर्स लगे, 6 आवर्स। तो जो आपकी एवरेज स्पीड रहेगी दैट इज 240 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज 4 किलोमीटर पर आवर, ऐसा ही है। तो स्पीड जो है आपकी दैट इज इट्स 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर जो है आपकी स्पीड रहेगी। लेकिन ध्यान देना फिजिक्स में हमें एवरेज वैल्यू कुछ भी नहीं बताती है। क्या ये एवरेज वैल्यू आपको बताएगी कि आपकी जो स्पीड थी ठाठरी में क्या थी? क्या ये बताएगी कि जब आपने लंच किया क्या उस वक्त आपकी स्पीड क्या थी? क्या एवरेज स्पीड बता पाएगी? नहीं। एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर, एक रफ आइडिया आपको मिला कि आप इस स्पीड से चले हो होल जर्नी में आप, जबकि होल जर्नी में 40 किलोमीटर नहीं होगी। जब आपने लंच किया होगा तो आपकी स्पीड 0 होगी उस वक्त। आप किसी कर्व पे आए होंगे तो आपकी स्पीड चेंज हुई होगी। आप जो है नेशनल हाईवे जो कि आपका उधमपुर से आगे का है, जो कि 4 लेन है, वहां मूव करोगे तो काफी तेज स्पीड होगी, इवन की 110 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। तो एवरेज स्पीड आपको कुछ आइडिया नहीं देगी, जस्ट रफ आइडिया बताएगी कि आपकी स्पीड जो है होल जर्नी में क्या थी। इससे कोई आइडिया फिजिक्स में मुझे किसी पर्टिकुलर जगह पे स्पीड चाहिए वो एवरेज स्पीड से नहीं मिलेगी। किसी खास जगह पे स्पीड निकालना, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। जैसे मैंने कहा किश्तवाड़ से स्टार्ट किया, जम्मू पहुंचे आपने कहा कि डिस्टेंस हम जानते हैं किश्तवाड़ टू जम्मू दैट इज 240 किलोमीटर, और आपको 6 घंटे लगे, वो आप टाइम मेजर कर सकते हो। एवरेज स्पीड कोई पूछेगा तो 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये 40 दिख नहीं रहा है, दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई बताओ किसी पर्टिकुलर जगह आपकी स्पीड क्या थी, जब आपने कर्व ट्रेस किया उस वक्त स्पीड क्या थी, जब आप ठाठरी पहुंचे उस वक्त स्पीड क्या थी, डोडा में आपकी स्पीड क्या थी, आपने कहीं लंच किया वहां पे आपकी स्पीड क्या थी, तो आपको कोई आइडिया नहीं मिलेगा एवरेज स्पीड से। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि फिजिक्स में हमारे पास एवरेज वैल्यू की जो है एवरेज स्पीड जो है वो कोई आइडिया हमें नहीं देती है। अगर हमें चाहिए फिजिक्स में कोई इंपॉर्टेंट चीज दैट इज इंस्टेंटेनियस, जो कि हर एक पॉइंट का हमें बताएगी, तो व्हाट इज दिस इंस्टेंटेनियस स्पीड? स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको आप नोट कर सकते हो। Now instantaneous speed. हमने क्या कहा, इसकी डेफिनेशन देंगे। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? इट इज स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे जो आप स्पीड दोगे दैट इज व्हाट वी कॉल इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्टैंड्स फॉर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी स्पीड क्या होगी, दैट इज व्हाट वी कॉल इंस्टेंटेनियस। अब कैसे आएगी, ध्यान से देखना। हमने कहा एवरेज स्पीड जो है वो हमें मिली डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये फॉर्मूला मैंने जानबूझ के लिखा, अदरवाइज एस बाई टी। ओके नोट, टोटल डिस्टेंस इससे लिख लो, टोटल टाइम इससे लिख लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला मैंने लिखा था ताकि इंस्टेंटेनियस भी हमने पढ़ना है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, हमने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। अगर मैं एवरेज स्पीड में डेल्टा टी को अप्रोच कराऊं 0,
मीन्स मैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो करूंगा। डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज जो है वो इंस्टेंटेनियस में चला जाएगा। अगर आपको याद होगा जब हमने स्लोप डिफरेंशिएशन पढ़ी हुई थी तो मैंने आपको वहां पे भी कहा था कि जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस चाहिए जो कि डिफरेंशिएशन से मिलेगा, हम लिमिट का यूज करते हैं। हम अगर टाइम को अप्रोच कराएंगे जीरो के बराबर, जीरो नहीं बल्कि अप्रोच, ये हमने पढ़ा हुआ है लिमिट का कंसेप्ट, तब जाके हमारे पास क्या होगा, जो एवरेज वैल्यू है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यही चीज करने वाले हैं हम कहेंगे एवरेज स्पीड, दिस इज नॉट इंस्टेंटेनियस, दिस इज एवरेज। एवरेज स्पीड को हम क्या करेंगे, डेल्टा वी इंस्टेंटेनियस लिखूंगा। अब इंस्टेंटेनियस कैसे आएगा, एवरेज में लिमिट कर देते हैं। जो टोटल टाइम था, अब मैं बता रहा हूं टाइम एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये चीज आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी टी ऑफ एस। मीन्स इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। Time rate of change of distance, that is speed. Which speed? Instantaneous speed. जो हमने अभी कहा था रेशो ऑफ पाथ लेंथ टू द टाइम टेकन और रेशो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम टेकन, उसी को हम बता सकते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज स्पीड। विच स्पीड? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इन जनरल स्पीड भी बता सकते हैं। तो यही हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्यों चाहिए, ये हमें बताएगी जिस भी जगह का आपका पूछा जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि किश्तवाड़ से आपने स्टार्ट किया, जम्मू पहुंचे, जो भी मैं आपको पूछूंगा, किसी भी इंस्टेंट का पूछूंगा तो वो हमें इस फॉर्मूले से मिल जाएगा। हमने किया क्या, एवरेज स्पीड में लिमिट अप्लाई की। जब आप एवरेज में लिमिट अप्लाई करते हो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो हमारे पास एवरेज स्पीड जो है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड में बदल जाएगी। तो हमारे पास जो हमने बेसिक डेफिनेशन लिखते हैं, जो कि आपने 9th में भी पढ़ी होगी डेफिनेशन स्पीड की, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट इज स्पीड, दैट इज एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करेंगे, दैट इज टोटल डिस्टेंस टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू रेट ऑफ टोटल टाइम। तो इस चीज को ध्यान में रखना, आपका यूनिट नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा, स्पीड है तो स्पीड ही रहेगी। हमने डायमेंशन में पढ़ा हुआ है कि सभी, अगर जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर उनका नेचर सेम है तो उनके डायमेंशन सेम रहेंगे, और हमारे पास अकॉर्डिंगली उनका जो है यूनिट भी सेम है। यूनिट सेम, यूनिफॉर्म स्पीड हो, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, इंस्टेंटेनियस हो, एवरेज हो, यूनिट एज वेल एज डायमेंशन सेम, जस्ट हमारे पास डेफिनेशंस बदल रही है और हमारा फॉर्मूला जो है वो बदल रहा है इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज के लिए। और इंस्टेंटेनियस मैंने कहा कि ये स्पीड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, जिस भी जगह आपको चाहिए स्पीड, आप ऐसा करके वो टाइम की वैल्यू दे दो, यू विल गेट द स्पीड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो ध्यान देना, स्पीड के केस में हमारे पास दो चीजें आई। फॉर्मूले में बता रहा हूं कि स्पीड जो है दैट इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अगर ऐसा हुआ, जो कि आप कॉमनली 9th में करते थे, तो दैट इज आवर एवरेज स्पीड। ठीक है, लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो वो आप लिखोगे डी एस बाई डी टी, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। और ये हमने पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन में। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्पीड। सेम ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी को भी। वेलोसिटी में भी यही दो कैटेगरीज करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आपको ये पता चला तो वेलोसिटी में एक ही चीज तो बदलनी है, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट कर देना है, और आपकी सभी डेफिनेशन जो है वेलोसिटी की आ जाएंगी। मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम वेलोसिटी का डिवीजन करेंगे। वेलोसिटी को भी हम पहले, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, नंबर 1 हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, पहले दो कैटेगरीज कर लेते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेलोसिटी ध्यान देना, वेलोसिटी में हमारे पास क्या होगा, डेफिनेशन तो हम जानते हैं, वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू रेट ऑफ टाइम। एंड ये ध्यान देना, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं ताकि आपको भूले ना, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी।
ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। अभी तक डायरेक्शन नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, हमने डायरेक्टली कहा था, लेकिन अब हम बता रहे हैं मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अब हम यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे इफ velocity of an object remains constant. If velocity of an object remains constant throughout the motion. अब velocity remains constant ये सिंपल नहीं है जैसा अभी तक स्पीड के केस में था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि velocity remains constant मैं यहां पे मेंशन करूंगा आपके लिए both in magnitude as well as डायरेक्शन। दोनों में से कोई एक भी बदल गया ना तो आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट समझ लो, ऑब्जेक्ट है और वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और कोई कहेगा ये घूम रहा है विद 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये घूम रहा है ना, ऐसे घूम रहा है, तो इसकी स्पीड यहां पे 2 मीटर, 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 मैग्नीट्यूड हर जगह 2 मीटर। तो मैं कहूंगा कि ये घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो बच्चे बता दें कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी घूम रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाई? ऑल्दो कि मैग्नीट्यूड इसका सेम है, लेकिन यहां पे इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन इधर, यहां पे इसकी डायरेक्शन इधर, यहां पे इसकी डायरेक्शन इधर की ओर, 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 यहां पे इसकी डायरेक्शन इधर की ओर। तो मैग्नीट्यूड का सेम होना ये नहीं है कि वेलोसिटी सेम होगी, नहीं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या सेम होना चाहिए? डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, फिर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ए से बी जा रहा है, देखो भाई ए से बी जा रहा है और ऐसे जा रहा है, और फिर यहां पे 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, इन बिटवीन कहीं पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, और देख लो मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी सेम है, फिर मैं कहूंगा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट स्पीड के साथ भी मूव करेगा। व्हाई? बिकॉज डायरेक्शन तो है नहीं वहां पे। लेकिन एक ऑब्जेक्ट अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो जरूरी नहीं है कि उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, डायरेक्शन बदल सकती है। अगर डायरेक्शन बदल गई तो कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं रहेगी। तो ये ध्यान देना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन बट बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बिकॉज ये आपके लिए नया है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इस पे फोकस कर देता हूं, स्ट्रेस करता हूं मैं इस पे कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन को भी ध्यान देना है आपको, फिर जाके वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट। जैसे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर आगे हम एक्सेलरेशन में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही आपको बता देता हूं। तो ध्यान देना, सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट हो सकता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूमे, लेकिन सर्कुलर मोशन में पॉसिबल ही नहीं है कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ घूमेगा। व्हाई? बिकॉज हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। अगर हर पॉइंट पे डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट रहेगी? तो इसको ध्यान देना। एंड नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? अब तो नॉन यूनिफॉर्म सिंपल सा, यूनिफॉर्म क्लियर हो गया, इस पर मैंने स्ट्रेस किया बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन में। तो नॉन यूनिफॉर्म को हम बता सकते हैं इफ वेलोसिटी चेंजेस either in magnitude or in direction. If velocity changes, दोनों में से किसी में भी, या तो मैग्नीट्यूड में बदलेगी, ओके, जो कि बच्चों को कॉमन लगता है, लेकिन अगर डायरेक्शन में भी बदल गई तो फिर भी चेंज होगी वेलोसिटी। तो हम लिखेंगे इफ वेलोसिटी चेंजेस ईदर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड में चेंज हो या फिर डायरेक्शन में चेंज हो, दोनों में चेंज हो फिर भी चेंज होगी, किसी एक में चेंज हो फिर भी जो है वेलोसिटी चेंज होगी। और अगर मोशन के दौरान वेलोसिटी का कोई भी पैरामीटर, या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन चेंज हो गई, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, नेक्स्ट हम जाएंगे, जैसे ईदर इन मैग्नीट्यूड और इन वेलोसिटी, और बोथ भी लिख सकते हो, और बोथ दोनों भी चेंज होंगे, दोनों में से एक भी चेंज होगा, चेंज हुई, एक भी चेंज, दोनों चेंज होंगे, वो तो चेंज ही चेंज है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट में ध्यान देना कि मैग्नीट्यूड में भी सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन भी उसकी सेम रहनी चाहिए, फिर जाके हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो घूम रहा है।
नेक्स्ट कैटेगरी जो हम देखने जा रहे हैं दैट इज एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बस इतना लिख देता हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे हमने स्पीड के केस में देखा था। अब यहां पे now what is average velocity? Same, average velocity v with an arrow, that is total displacement, आज उसको क्या हम नेट डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो मैं लिख सकता हूं v एवरेज जो है, एवरेज वेलोसिटी जो है दैट इज डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं डेल्टा एस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एस विद एन एरो, बिकॉज इट्स अ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी, ठीक है। लेकिन जब मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए तो इंस्टेंटेनियस मींस वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट और एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। जब भी इंस्टेंटेनियस आएगा, जो मैंने स्लोप में भी आपको कहा है, दैट इज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो हमारे पास यहाँ पे एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो हमारे पास आएगा, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे, एवरेज में डेल्टा टी को अप्रोच करा लो जीरो के बराबर। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, वी इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, आप इसी के नीचे लिख सकते हो, वी इंस्टेंटेनियस जो है वो रहेगा डेल्टा एस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, बट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। जब हम ऐसा कर रहे हैं, हम फिक्स कर रहे हैं कोई पॉइंट, टाइम को हम इंस्टेंटेनियस टाइम बता रहे हैं, तो ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एस। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज अवर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और मैंने कहा है कि इंस्टेंटेनियस इंपॉर्टेंट है, एवरेज से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इंस्टेंटेनियस हमें एंटायर जर्नी के बारे में बताएगा, एवरेज तो बिटवीन 2 पॉइंट्स बताता है। एवरेज वैल्यू मैं ऐसा बता सकता हूं, एवरेज वेलोसिटी जो है इट इज अ वेलोसिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, उनके एवरेज निकाल लो, एंड बट इंस्टेंटेनियस इज वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। इंस्टेंटेनियस जब टोटल डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, सॉरी एवरेज निकालेंगे जब टोटल डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, टोटल टाइम गिवन हो, लेकिन इंस्टेंटेनियस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना हो तो तब जाके हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इन पे हम थोड़ी छोटी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, वो वहीं पे देखेंगे। अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन देख रहे हैं, तो इसको इन फॉर्मूलों को दिमाग में रखना और इनकी डेफिनेशंस को भी दिमाग में रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ मोशन जो है दैट इज एक्सेलरेशन। लेकिन एक्सेलरेशन को पढ़ने से पहले हम मोशन की 2 टाइप्स पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर जाके हम एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे। मोशन को डिवाइड किया जाता है 2 टाइप्स में। नंबर 1 जो हमारे पास है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास है, यही मैं आगे कर देता हूं इसको, नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ध्यान देना, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन मेजॉरिटी बच्चों को गलत हो जाता है, उनके दिमाग में जो कंसेप्ट होता है वो गलत कंसेप्ट होता है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, अब हम स्पीड वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, मोशन एज अ होल की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये दोनों को डिफाइन किया जाता है बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट, नॉट ऑन डिस्टेंस, जो कि सबसे पहले बच्चे गलती कर बैठते हैं। बच्चे बताते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यूनिफॉर्म मोशन, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नहीं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को जब भी हमने डिस्कस करना होगा, डिफाइन करना होगा, तो इनको डिफाइन किया जाता है बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट। या मैं बता सकता हूं, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो मैं बता सकता हूं कि इनको डिफरेंशिएट और डिफाइन किया जाता है बेस्ड ऑन वेलोसिटी। स्पीड पे हम इनको डिफाइन नहीं करते। तो ध्यान देना, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, मोशन की बात हो रही है, स्पीड वेलोसिटी की बात नहीं हो रही है, पैरामीटर ऑफ मोशन की बात नहीं हो रही है, मोशन इन जनरल की बात हो रही है। यूनिफॉर्म मोशन को हम डिफाइन करते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट travels equal displacement in equal interval of time, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। या मैं बता सकता हूं ऑब्जेक्ट
मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। वेलोसिटी मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, फिर जाके मैं क्या कहूंगा, यूनिफॉर्म मोशन है। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान देना, ये ए बी गया ऑब्जेक्ट, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ये समझ लो। और हर एक इंटरवल जो है मैं टाइम में डिवाइड करता हूं, दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज 1 सेकेंड। और मोशन अगर यूनिफॉर्म हुआ, इसकी वेलोसिटी जो है वो सेम होगी ऑब्जेक्ट की, फिर जाके मैं कहूंगा कि मोशन यूनिफॉर्म है। या मैं कहूंगा कि ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, मींस ए टू बी, लेट इट बी इट्स 1 मीटर, बी टू सी इट्स ऑल्सो 1 मीटर, सी टू डी इट्स ऑल्सो 1 मीटर, डी टू ई इट्स ऑल्सो 1 मीटर। तो मैं क्या बता रहा हूं, ईच सेकेंड में ऑब्जेक्ट जो है वो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट मींस इसकी डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है, डिस्प्लेस डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है वेलोसिटी का, फिर जाके ये इक्वल डिस्टेंस जो है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करेगा, देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। इसके कंपैरिजन में अगर मैं कुछ ऐसा कहूंगा, ए टू बी चला गया, लेट इट बी इट्स 1 मीटर और इसने 1 सेकेंड लिया, बी टू सी गया, इट्स ऑल्सो 1 मीटर लेकिन इसने 2 सेकेंड्स लिए, सी टू डी चला गया, लेट इट बी इट्स ऑल्सो 1 मीटर लेकिन इसने अब 0.5 सेकेंड लिया। तो हो क्या रहा है यहां पे, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। या उल्टा बता सकता हूं, अनइक्वल डिस्टेंस, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मींस वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। और नॉन यूनिफॉर्म में दो तरीकों से मैं डिफाइन कर सकता हूं इसको। नंबर 1, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर ध्यान देना, दिस इज 1 सेकेंड, this is 1 second, this is 1 second, but here it is 1 meter, here it is 2 meter, here it is 3 meter, A to B, B to C, C to D। यहां पे क्या हो रहा है, टाइम सेम है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो ये कर रहा है दैट डिफर्स। हर ईच 1 सेकेंड के लिए ये कभी 1 मीटर कर रहा है, कभी 2 मीटर, कभी 3 मीटर। इक्वल टाइम इंटरवल के लिए डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट, फिर भी मोशन नॉन यूनिफॉर्म। एंड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फिर भी मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म। दोनों ऑल दो सेम ही है लेकिन बच्चों को डिफरेंट लग रहे हैं। मैं क्या बता रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सिंपल सी डेफिनेशन, वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होगी, वेरिएबल। अब ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा, वेलोसिटी वेरिएबल इधर इन मैग्नीट्यूड और इन डायरेक्शन। कभी कभार क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, जैसे ए टू बी गया 1 मीटर और फिर बी टू ए वापस आया 1 मीटर इन 1 सेकेंड, 1 मीटर इन 1 सेकेंड। लेकिन हो क्या रहा है, हमारे पास डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है, डायरेक्शन बदल रही है। अगर डायरेक्शन बदल रही है, यहां पे कोई कह सकता है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है। यहां पे +1 है और यहां पे -1 है। बच्चों को मैग्नीट्यूड सेम लग रहा है लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन पे ध्यान नहीं दे रहे, तो ये नहीं बता सकते हो इन दिस केस। हाँ, यहां पे मैं बता सकता हूं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर मैंने डिस्टेंस को लेकर डिफाइन किया होता, लेकिन नहीं, हमने क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट को लेकर डिफाइन। यहां पे 1 मीटर, पॉजिटिव 1 मीटर इन 1 सेकेंड, यहां पे नेगेटिव 1 मीटर इन 1 सेकेंड। तो दोनों में डिफरेंस तो है, इधर एक किस्म की डायरेक्शन, इधर दूसरे किस्म की डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं हो रहा है, ऑल्दो डिस्टेंस सेम है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है तो मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, मोशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। इसीलिए मैंने बिगनिंग में ही कहा था कि हम यूनिफॉर्म मोशन को जब डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में, तो हम डिस्प्लेसमेंट को लेकर डिवाइड करते हैं, ना कि डिस्टेंस को लेके। अगर डिस्टेंस को लेके आपने डिफाइन किया तो ये जो चीज थी, जो मैंने कहा कि ए टू बी गया और बी टू ए आया, 1 मीटर 1 मीटर, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन लिख सकते हो।
an object moving with variable velocity, simple C definition, that is non-uniform motion. Variable velocity जब मैंने कहा, it can be either in magnitude or in direction or in both. या फिर simple आप बता सकते हो, if an object travels equal displacement in unequal interval of time, इसको आप नोट कर सकते हो. If an object travels equal displacement in unequal interval of time, or if an object travels अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन दे दो. या सिंपल सी डेफिनेशन मैंने कहा, यूनिफॉर्म मोशन मींस ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉट स्पीड, वेलोसिटी. ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी. होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. थैंक यू. और मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ कि कोई भी आप में से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, या तो आपको लेक्चर सभी सही से समझ आ रहे हैं इसलिए कोई कन्फ्यूजन ही नहीं हो रहा, या तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहे तो कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं हो रहा है. मैं फिर से बता देता हूँ कि कहीं पे कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो.